In the third unit, we have discussed lots of parameters regarding to the input output and formatting of a particular output along with various tools or functions that we can use, and with the help of that we can make a C language easier on with respect to the programmer or with respect to the user also, right? Because when we are considering any language, any programming language, that programming language should be compatible with respect to the compiler, it should be compatible with programmer, and it should be compatible with the end user, right? So three aspects are there. So in order to satisfy these three conditions or three aspects, C language has multiple functionalities or multiple we can say that tools inside it, and out of that few tools that we have covered in the current unit. Now in this case, if you are doing the program part, or if you are doing the one program like interchange the two numbers, correct? We want to interchange the two numbers, that A is given as a 10 and B is given as a 20, and we want to swap it. Swap it means we have to interchange it, right? A का number B को जाना चाहिए और B का number A को जाना चाहिए, right? So how we can do it? Initially we have to use same format, that is to add a or to include header file in your program along with a declaration of a main class, that is a void main, correct? After that declaration of a variable of data type integer, we require the three variables. It is as much as simple that we have a three utensils. हमारे पास तीन utensils हैं. In a one utensils there is a grains, गेहूँ. In a second utensils we have a rice, right? And first utensil, that wheat, will be converted or will be put into the second one, and second utensils rice will be put in a first one. So for that we require a third utensil. So first we will put wheat from A to C. A से हम wheat जितने भी होंगे वो हम C में add कर देंगे, then A will be vacant, then rice will be added into the A, right? जो B vessel है उसमें जो rice है वो हम add कर देंगे A में. So ultimately B vessel that becomes empty, and the C vessel in which there is a wheat, that C vessel will be हम add कर देंगे B vessel में, so utensils में. So ultimately we will get with the help of a third variable or the third utensils. Similarly we are doing the same in this case. Integer x, y, z, these are the three variables. Out of that, two values that we will read from the user, any two numbers values that we will read from the user, and third variable that remains empty. Initially it remains empty, and it is used for to exchange the particular numbers in between the two number or two variables, right? Excuse me. Printf statement is there that shows the message enter the two numbers. Once the message will be displayed, user will enter the two numbers with a space. That number should be read with the help of a scanf. As it is a input function, scanf will read it, and as we use the integer data type for the declaration of a variable xyz, we use the format specifier as %d. Two numbers that we have to read, in that case we use the 2 times %d. %x, %y is used in order to access the value which should be stored in at the particular address where the x is where the x is located inside the memory. है ना, यहाँ पे ampersand x जब भी हम यूज करते हैं, it just reflect the address of that particular x जो मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है? We are not fetching there any kind of address location with a address value. एड्रेस वैल्यू के साथ हम उसको फेच नहीं करते, ठीक है? हम कभी भी हमारे फ्रेंड्स को जब बोलना रहता है कि वो कहाँ पे रहता है, ठीक है,
तो जैसे फॉर एग्जांपल अकोला में रहता है, अमरावती में रहता है, सो वी विल टेल द सिटी नेम, राइट. बट व्हेन वी पास फ्रॉम देयर होम, किसी फ्रेंड के घर के सामने से हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसका घर का एड्रेस या फिर घर का नाम जो भी होगा, हाउस नेम, हाउस नंबर, वी विल नॉट कॉल विद दैट पर्टिकुलर, वी विल कॉल इट दैट कि माय फ्रेंड्स होम. उसका अगर नाम होगा साकेत, सो ये साकेत का घर है, ठीक है. तो साकेत इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज अ वेरिएबल नेम, एंड विद दैट वेरिएबल नेम द कंप्लीट हाउस इज इंडिकेटिंग. अब उस घर में क्या सिर्फ एक अकेला साकेत ही रहता है क्या? नहीं, होल फैमिली ऑफ साकेत इज सिचुएटेड इन दैट पर्टिकुलर होम. सो बट इट इज इंडिकेशन कि ये उसका घर है. सो हियर वी आल्सो हैव अ वेरिएबल नेम, and that variable name is nothing but the one space in which the values that can be stored, but their address is just for access for of a compiler के लिए वो accessible रहता है, हमारे लिए accessible नहीं रहता. We are not considering that particular part, we are considering the notation और लेबल. उस पर्टिकुलर एड्रेस को लेबल कौन सा लगा हुआ है, ठीक है. जैसे स्क्वायर को कोई भी सिटी में स्क्वायर रहता है तो उसको लेबल रहता है कि ये स्क्वायर, इसका नाम ये है, ठीक है. राजकमल स्क्वायर, देन राजापेट स्क्वायर, लेबलिंग वॉज देयर, ठीक. उसका कोई अलग नाम भी हो सकता है, बट वी कॉल इट एज विद दैट पर्टिकुलर नेम, ठीक है. So similarly here we are also having the address of a x and y variable that will be readed. Once the user will put the value, that value will be input with the help of that particular scanf statement. Now what we are doing, we are just exchanging that values. First initially what we are doing, z is a third variable which is empty actually, because we read the x and y and that value will be stored. Z equal to y, it means that the value of y that will be stored into the z variable, means right hand side to the left hand side, with the help of which operator? Assignment operator. Exactly, it is a assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने असाइन कर दी, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने असाइन कर दी लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट. नाउ व्हेन y की जो वैल्यू थी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे. x इज हैविंग, if suppose if you are giving the x equal to 10 and y equal to 20. Now y is having a 20 and that will be stored over here. I will write here like this, correct. Is it visible properly? Yes, sir. Okay. Okay, so in that case 20 is stored in the z. In that case y is having a 0, ठीक है. एग्जैक्टली जीरो नहीं, बट इट इज अ नल, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. so it means that we can add anything inside the y. so we will add the value of x की वैल्यू क्या है 10, initially it is a 10, so 10 will be assigned y equal to x. so x की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, y में चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is empty 0, so it will y is having a 10, ठीक है. इनिशियली y की वैल्यू क्या थी 20. 20 is assigned to the third variable that is z. तो y में इसकी 20 अगर चली जाती है, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, यानी एग्जैक्ट यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होगा वो कैसे होगा कि यहाँ पे 10 तो रह जाएगा, सॉरी 20 तो रह जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है. y इज असाइनिंग द वैल्यू, मीन्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता है, करेक्ट. कॉपी पेस्ट होता है. जब हम कॉपी करते हैं कोई भी डेटा कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है वहाँ पे भी वो डेटा प्रेजेंट रहता है. बट हम कट पेस्ट करते हैं तो जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ से भी डेटा पूरे का पूरा इरेज होते हुए सेकंड पोजीशन पे पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है. तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, 20 इज असाइन टू द z वेरिएबल बिकॉज ऑफ y इक्वल टू z, करेक्ट. Now in that particular case when we are Sir. quickly, yes सर बट हमने स्कैनर स्टेटमेंट में तो बस दो ही वेरिएबल यूज किए ना रीड करने के लिए, correct एक एक्स एंड वाई, तो जेड कैसे आ गया उसमें?
Z we declared ना, we declared Z as an integer variable. ओके 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 करेक्ट. वो हमने एक एडिशनल यूटेंसिल्स रखा है हमारे पास, एडिशनल वेरिएबल रखा है इन ऑर्डर टू एज एन एम्प्टी. as an empty, exactly, as an empty. We can also declare z equal to 0. z equal to 0 भी डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं भी डिक्लेयर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वैल्यू ओवरराइडिंग का कंसेप्ट उसमें आता है. ठीक है. जैसे पहले पॉट में अगर राइस था, वो अगर आपने निकाल लिया, ठीक है, तो उसके बाद अगर उसमें आप कोई और ग्रेन्स अगर ऐड करते हो, ठीक है, इट मीन्स दैट दैट ग्रेन इज अ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर यूटेंसिल. पहले का कहा गया वो निकल गया. ठीक है. तो इट इज अ ओवर राइडिंग. ठीक है. क्योंकि एक वेरिएबल में एक समय पे एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. करेक्ट. सो विद दैट प्रिंसिपल y's वैल्यू विच इज अ 20, वो y में भी है एंड इट इज इन द z ऑल्सो. ठीक है, दोनों में है. ठीक है. बट इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इमीडिएटली इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट हैपन, ठीक है, वी वांट दैट x वैल्यू शुड बी स्टोर्ड इनटू द y. तो प्रीवियसली जो 20 की वैल्यू है y में, वो चली जाएगी, वो ओवरराइड हो जाएगी, और ओवरराइट हो जाएगी, राइट नहीं, राइट, WRIT, ओवरराइट. एंड y is having a new value which is a 10. now again in the x में जो 10 है वो 10 है ही. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, क्योंकि उसके आगे का जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. ठीक. सो इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेटमेंट y की वैल्यू z को असाइन हो गई, तो दोनों में 20 है. देन x की वैल्यू y को असाइन हो गई, फिर से दोनों में 10 है. नाउ हियर z इज हैविंग द वैल्यू 20. z की वैल्यू क्या है 20, एंड दैट वी विल असाइन टू द x की करंट वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 10. 10. x की करंट वैल्यू है 10, तो वो 10 क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी. ठीक है. तो अब z की जो वैल्यू है 20, दैट विल बी गिवन टू द x. करेक्ट. तो यहाँ पे हमने x एंड y प्रिंट किया हुआ है. सो इफ सपोज वी आर डूइंग, विल कॉपी दैट कोड. try to execute. Is it screen visible? Black screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will zoom it. Okay. Now here we can say this program is basically for exchanging the numbers with the help of a third variable, interchanging the numbers with the help of a third variable. Correct. So at every single stage we will find out that what will be the value of x and y. Initially हम इसको प्रिंट कर देते हैं. अब ये समझ में आ गया ना आपको कि ये वैल्यूज कैसे यहाँ पे एक्सचेंज होने वाली है. सर हाँ. यस. सर सबसे पहले जब हमने y की वैल्यू z को असाइन की थी 20, उसके बाद दोनों में 20 आ गई, और सिर्फ फिर जब x की वैल्यू y को असाइन की तो y में की 20 कहाँ पे गई. ये यही बताने वाला हूँ मैं. अब यहाँ पे कैसे हमने तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिए, और प्रिंटफ स्टेटमेंट वाज देयर. अब वन प्रिंटफ स्टेटमेंट इज ओनली फॉर x and y. Correct. I guess someone mic is there. Okay. So after exchanging we are printing only the x and y value. What we will try to print over here. ये जो ब्लैंक्स दिए हैं मैंने वहाँ पे आपको एक बार फिर से मैं प्रिंट करके बताऊंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. बिफोर दैट वी विल एग्जीक्यूट द करंट प्रोग्राम. एंटर द, यहाँ पे एंटर द टू वैल्यूज है. ठीक है. और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है. करेक्ट. सो अब देखिए अब क्या उसमें, एक सेकंड.
चेंजेस होते हैं। मैंने 15 दी, ठीक है, और 25 दी, ठीक है, क्या हुआ, उसने जो रीड की वैल्यू, ठीक है, मैंने तो वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वैल्यूज दी थी 10 एंड 20 एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, और उसके बाद मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, मैं इनपुट आउटपुट दिखा रहा हूँ, एंटर द टू नंबर, एंड स्कैनफ के थ्रू मैं रीड कर रहा हूँ दो नंबर, करेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, इट विल शो आउटपुट फॉर द 15 एंड 25। सो व्हाट अबाउट 10 एंड 20, वो भी x में ही है, y में ही है, ठीक है, बट वो ओवरराइट हो गए, करेक्ट, क्योंकि पहले स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुआ, इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड 20। उसके बाद क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एंटर द टू नंबर्स। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, स्कैनफ। तो स्कैनफ ने क्या कर दिया, x एंड y की जो इनिशियल वैल्यू थी 10 एंड 20, उसको ओवरराइट कर दिया, उसको गायब कर दिया। गायब मीन्स वो मिटा देता है उसको, ओवरराइट मीन्स उसको मिटा देता है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस जो है प्रीवियस वैल्यू का वो जीरो हो जाता है, और जो नई वैल्यू रहती है वो वहाँ पे अपनी जगह ले लेती है, ठीक है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आउटपुट में 15 एंड 25 ने जगह ले ली, ठीक है। नाउ इफ आई हाइड दिस लाइन्स, ये रहने दो, इसको हाइड कर देता मैं, मीन्स कमेंट कर दिया मैंने, उसको कमेंट कर दिया तो वो हाइड हो जाती है, एंड देन वी विल रन। सो सी द आउटपुट, एंटर द नंबर है वो तो आ गया उसमें, उसको भी हाइड कर देते हैं हम, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस टू लाइन्स, उसको हमने कमेंट कर दिया। नाउ विच current actually values that we have assigned, x equal to 10, y equal to 20, now that the value of first x and y will be interchange and that will be taken। बट मैंने इसके पहले जब 15 एंड 25 दी थी तब 20 और 10 कहाँ गए थे, वो ओवरराइट हो गए थे, अंडरस्टूड सर्वेश? यस सर। वो ओवरराइट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, उनका एग्जिस्टेंस वहां से पूरी तरह से नलीफाई कर दिया जाता है, एंड न्यू वैल्यूज सर विल बी, मगर हाँ यस, सर मगर प्रिंटफ जो स्टेटमेंट है वो तो नंबर्स रीड करने के लिए होता है ना, नहीं तो नहीं, प्रिंटफ प्रिंटफ ही हटा देंगे तो। प्रिंटफ नहीं, प्रिंटफ रीड करने के लिए नहीं होता, स्कैनफ रीड करने के लिए होता है, ओके ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम रीडिंग तो कर ही नहीं रहे ना, रीडिंग की कोई जरूरत ही नहीं है ना, what we are अरे doing, हाँ। we are just assigning the values, predefined values। There is a two way of programming, one way is value is fixed, ठीक है, and another way is we are asking the value to the user। So when the value is fixed, then there is no need to read the value। scanf क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू को रीड ही करेगा ना, और तो कुछ नहीं करेगा, करेक्ट। रीडिंग रीडिंग के लिए ही हम रीडिंग के लिए हम scanf यूज करते हैं, otherwise there is no need of a scanf if your values are fixed। बट जब आप ऐसा प्रोग्राम यूज करते हो जैसे कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, और उसमें आपने वैल्यूज अगर पी एन आर ये तीनों वेरिएबल की फिक्स कर दी, तो इज इट योर प्रोग्राम इज कंपेटेबल विद द रेस्ट ऑफ द अदर लोन, जिन्होंने लोन लिया है अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अलग अलग ईयर्स के लिए, तो उनके लिए आपका प्रोग्राम कंपेटेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नो सर। क्योंकि आपने तो वैल्यू फिक्स कर दी। आप बोलोगे हमारे बैंक में लोन लेना है तो आपको 10,000 लेना ही लेना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल अमाउंट 10, किसी को 10,000 नहीं चाहिए, 50,000 लोन चाहिए, तो उसके लिए आपका प्रोग्राम क्या बोलेगा, नहीं, नहीं जमेगा, नॉट कंपेटेबल। इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर, दैट प्रिंट एफ वाला और स्कैन एफ वाला। प्रिंट एफ क्या बोलेगा कि एंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट, और जब आप प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करोगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, ठीक है, तो उसको रीड करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करोगे उसको वो रीड करेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैरी हो सकता है। गवर्नमेंट की जो नेशनलाइज बैंक है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है, प्राइवेट बैंक का थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है, और वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, सहकारी पत्र संस्था जिसको हम बोलते हैं, उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। एंड डेफिनेटली प्रिंसिपल अमाउंट वो तो चेंज होगी ना,
किसी को अगर टू व्हीलर लेनी है और उसके लिए लोन चाहिए तो 10 लाख का लोन नहीं लेगा। टू व्हीलर एक मैक्स टू मैक्स 80,000 90,000 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उसमें आ सकती है। तो और समझो किसी को हाउस के लिए लोन लेना है तो भी 50,000 2 लाख 3 लाख में नहीं लेगा, तो बल्क अमाउंट में लेगा। हाउस बनाना है, घर बनाना है, तो बड़ा अमाउंट लगेगा उसको। तो योर प्रिंसिपल अमाउंट में वैरी डेफिनेटली। एंड R, the rate of interest, that also vary, and P and N, number of years, वो भी वैरी होंगे। कोई 10 साल के लिए लेगा, कोई 20 साल के लिए लेगा, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा ईयर्स के लिए लोगे आप, डेफिनेटली उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जितना कम ईयर्स के लिए लोगे उतना आपका जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट रहेगा, ठीक है। ईयर अगर कम रहते हैं, ठीक है, तो कम ईयर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट पैसे जो ईएमआई रहेगा आपका वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि कम समय में आपको पूरा लोन क्लीन करना है, ठीक है, नील करना है, नॉट क्लीन, नील करना है, ठीक है। सो हियर इन दिस केस इन अ करंट प्रोग्राम वी आर यूजिंग printf statement and scanf statement. why? we can interchange any numbers, ठीक है। इंटीजर की रेंज में जितने नंबर्स आते हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी नंबर आप दे दो, we can interchange it with the help of that. now what we will do, we will print here. सर yes सर yes बोला मग. सर हे स्वॅप होत आहेत की इंटरचेंज होतात? ऍक्च्युली आता इथे दोन्ही केसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की दोन्ही म्हणजे स्वॅप आणि इंटरचेंज दोन्ही. आता एक साधी गोष्ट आहे की आपण वेन वी थिंक अबाउट दैट वन पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, अनदर पर्सन जस्ट लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक स्पोर्ट है जिसमें मैं भूल गया, अपने कॉलेज में भी वो स्पोर्ट्स खेला जाता है और पुराना स्पोर्ट है वो, ऐसा नया नहीं है। उसमें वो एक एक प्लेयर, मैं कैसे बताऊँ उसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। तो उसमें लगभग 7 से 8 प्लेयर रहते हैं एंड दे आर सीटेड इन अ वन रो, ठीक है, विथ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एनीवन रिमेम्बर, कोई रिमेम्बर करे? कौन सा? खो 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 खो, एग्जैक्टली मुझे तो खो खो सर। वो हुतुतु याद आ रहा था, उसको हुतुतु भी बोलते हैं, बट वो सर होतू तो मतलब कबड्डी। सॉरी 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 एग्जैक्टली, हाँ, हाँ वो कबड्डी का पार्ट है। उसको एक खो खो, अलग नाम है सर, लेकिन खो खो को भी। हाँ इसको भी कोई भी एक नाम है, बट आई डोंट रिमेम्बर इट। सो खो खो में क्या होता है कि जब भी आपको कोई टच करता है, ठीक है, तो वी हैव टू रन इट, करेक्ट। सो आपने अपनी जगह, आपने जो आपकी प्लेस है वो छोड़ दी, तो आपका जो पीछे वाला है वो उसको क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, ठीक है। सो इट इज व्हाट अ इंटरचेंज और एक्सचेंज, ठीक है। स्वैप जब हम बोलते हैं, स्वैपिंग, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ अ टू नंबर्स, वो इमीडिएटली एक दूसरे के बाजू में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है वो नंबर कहाँ पे स्टोर्ड है, वी डोंट हैव टू कंसिडर ऑल्सो इट, ठीक है, कि वो नंबर कहीं पे भी स्टोर रहा है, हमको क्या लेना देना है। हमने नंबर दे दिया 10 एंड 20, स्वैप का उसको इंटरचेंज करना है, ठीक है। इन दैट केस वो हो जाएगा पहले 20, उसके बाद होगा 10, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इंटरचेंज ही कर रहे हैं। स्वैपिंग मीन्स कॉन्जिक्यूटिव स्वैपिंग हो सकता है इमीडिएटली, कि जैसे मेरा रोल नंबर है 310 और सर्वेश का रोल नंबर है 311, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सर्वेश को रिक्वेस्ट की कि आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्वेश को सब कुछ आता है, तो मैं उनका पेपर देख के लिख सकता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ जोक, तो ऐसा मत करो, ठीक है। सो द केस इज, यहाँ पे इमीडिएटली जो एक्सचेंज होता है या फिर स्वैपिंग होता है तो कॉन्जिक्यूटिव रहता है, ठीक है। मैं किसी और क्लास के बच्चे को नहीं बोल सकता, फ्रेंड को नहीं बोल सकता, स्टूडेंट को नहीं बोल सकती कि तू मेरे जगह पे बैठ, मैं तेरे जगह पे बैठ जाऊंगा। इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। सो दैट वाज अ इंटरचेंज एंड इमीडिएटली रहा, इट इज अ स्वैपिंग। सो हियर वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ
x नॉट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, z की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे परसेंट d देन कॉमा z देन सेमीकोलन, एंड y की भी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, ठीक है. This will be the value of y. Okay, and we will run it. So enter the two numbers. First we will give the 20 and then 10. Enter. Backslash n was not there. Backslash n. Then after this backslash n. After this backslash n. Okay. नाउ इन दैट केस फिक्स वैल्यू जो हमने दी है वो निकाल देते हैं फिलहाल के लिए. z विल बी ओके. नाउ रन. एंटर द टू नंबर्स 20 space 10. Now you can see value of z is 10 and value of y is also 10. ठीक है, means this particular place both variable will contain the same value though there is a assignment operator. Correct? Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when we assign the right hand side variable value to the left hand side, so वहाँ पे कट पेस्ट नहीं होता है, कॉपी पेस्ट होता है. ठीक है, दोनों की जगहों पे दोनों की वैल्यूज सेम ही रहेगी. बट इमीडिएटली इन द नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे भी वही यूज करेंगे. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. वी हैव टू प्रिंट फर्स्ट वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू प्रिंट करेंगे हम, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे y की वैल्यू. ठीक है, और यहाँ पे बैकस्लैश n दे दिया हमने. सर फर्स्ट y की होगी ना प्रिंट? दिया हमने. Yup. Yep. Is there a echo in my voice? My voice. No sir. Okay. No, sir. Yes, sir. Echo आ रहा है सर्वेश? Okay. Enter the two values 20 space 10. Okay. Now value of z and y जो पहले देखी थी हमने वो 10 10 है. ठीक है. देन हमने इंट्रोड्यूस किसको कर दिया? x को कर दिया. तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 20 है, वो एज इट इज 20 ही रहेगी. बट दैट 20 वैल्यू इज असाइन टू द y बिकॉज हमने y इक्वल टू x लिखा है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? y इक्वल टू x. तो x की जो वैल्यू है वो 20, वो हमने असाइन कर दी y को. तो वहाँ पे हमको दिखता है आउटपुट में कि यहाँ पे दोनों जगहों पे 20 20 आ चुका है. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट फेज यानी x इक्वल टू z. ठीक है, तो वो वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं बिफोर द एक्चुअल इंटरचेंज. कंट्रोल v. यहाँ पे हमको चाहिए x. फर्स्ट इज x इक्वल टू परसेंट x एंड देन z इक्वल टू परसेंट z. ठीक है, राइट. एंड यस, रन. So here number is 20 space 10. Enter. Now we will see that first phase जो भी z इक्वल टू जो वाला था पहला जो केस था z इक्वल टू y. In that case value remains same in the both variable 10 10. Second phase 20 20 and third phase again 10 10. But the variable that changes. So that's why when we put 10 and 20 and 10 in a first variable 20, in a second variable 10, and finally we will get that their interchange value. पहले में आ गया 10 और दूसरे में आ गया एक्सक्यूज मी, पहले में आ गया 10 और दूसरे में आ गया 20. करेक्ट. इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत? No sir. No, sir. No, sir. ठीक है. No, sir.
तो नो सर। जो हमारे नोट्स में है, नोट्स आपको मे बी अभी 1-2 मिनट में आपको डिस्प्ले हो जाएगी, तो उसमें भी आप इसमें कमेंट्स पे लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। अदरवाइज इफ़ यू अंडरस्टैंड देन देर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। कमेंट्स वैसे भी लिखना कमेंट्स वैसे भी हमने लिखना चाहिए। Sir, यस Yes. sir, can we interchange the two numbers without using Z? यस यस Yes. Yes. we are Yeah, having we the are having next the program. next program. Write a program to Write a program interchange to interchange two numbers without using a third variable. ठीक है, we are having it. ठीक है, तो इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म। हम किसी को बोलते हैं ना कि तो एक नंबर बता, ये ट्रिक करते हैं ना हम, एक नंबर बता तू, उसमें फिर इतना नंबर ऐड कर, फिर उसमें फिर एडिशन हो जाती है, फिर एडिशन के बाद हम उसको सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोलते हैं, और फिर यानी हम क्या करते हैं, उसने जो भी नंबर मन में लिया है, ठीक है, यानी उसको हम बोलते हैं कि एक नंबर तू याद कर ले, मैं उस आपको बताऊंगा कि वो नंबर कौन सा है। बट व्हाट वी डू, वी टेल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि उसमें इतना ऐड कर, इतना माइनस कर, और उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके हम उसको बता देते कि तूने ये नंबर लिया है। ये ट्रिक की है क्या किसी ने, और किसी के साथ किसी ने की है क्या, टू फाइंड आउट द नंबर विच इज इन योर माइंड, और हैव यू heard or seen that particular case? particular case. यस सर, Sir, यस सुना तो है। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, सुना है। किया भी है। Okay. So Okay, that okay. same case we are doing over here, that interchanging two numbers without using the third variable. So first few lines that will be remain constant from the previous program till the scanf. The logic that we will change, that is here, x equal to x plus y, हमने दोनों को पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेट अस सपोज दैट x इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे y इक्वल टू 20. So the output of this particular x is 10 plus 20 equal to 30. ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला आउटपुट। ठीक, इन द नेक्स्ट केस व्हाट वी डू, x माइनस y, तो x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 20 equal to minus 10 value will be generated. Now again, now tell me what is the current value of x, that is 30. That is 30. and what we use 10, which is a wrong. We have to use over here updated value, right, 30. ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने क्या कर दिया, 10 and 20 पहले असाइन कर दिए, that is okay. We will get the output 30. 30 will be stored into the x variable. Now when we put the x minus y remains as it is, y की जो 20 value है that remains as it is, but the 30 will be updated value of x. So x minus y, that becomes a positive value, 30 minus 20, that is 10. Now when we again do the same operation with a previous variable, पहले हमने ये क्या किया ऑपरेशन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरे केस में हमने सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया, बट वी विल चेंज द स्टोरेज वेरिएबल, वहां पे x इक्वल टू कर दिया हमने, ठीक है, तो x इक्वल टू से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है फिलहाल, 30. Current वैल्यू इज value is 30. माइनस Minus अपडेटेड updated value of y 10. 10. Now tell me the initial value of x is 20. initial Initial is 10. initial value of Initial value of 10 is is x value 10 और 20 और जो है 20 जो है वो y की वैल्यू। वो y की वैल्यू। Now here Now here value of x value of x is 20. value of y is value of y is 10. so so is our is our
condition Condition satisfied. satisfied. Is it our current Is it our condition current satisfied? condition satisfied? Yes, sir. सर Yes, सर एको बहुत आ रहा, मतलब रिपीट आ रहा आवाज आपका. exactly. Actually, Yes, sir. Yes, sir. Yes. you just unmute. सभी ने unmute किया तो वो echo नहीं आएगा. Maybe now it is clear. Okay, you can comment it. Don't unmute yourself. फिर से echo आना शुरू हो जाएगा. You just have to comment it. I will open that particular part of chat. Is it my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलता Yes, sir. हूँ कमेंट में बताओ तो आप अनम्यूट करते हो. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. माय वॉइस इज Yes, sir. ओके 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 ओके. So kindly mute yourself, everyone, so the echo will not be there. Correct. Now in that particular program, what we are trying to do, we are just interchanging the values of first variable into the second one with the help of a x plus y. Value will be stored into the x. Then y equal to y, x minus y, value will be stored into the y. Then again x minus y, same operation, but the variable in which the value will be stored, that will be different, that is x. ठीक है. That is what simple exchange of values of a two in between two numbers without using the third number. We will see the output and then we will stop here. What happened? Okay, the space was there. Just because of a extra space in between the s and the bracket, it shows the error, right? So you can see that what is the significance of a white space or a blank space. वो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ stdio के पहले, तो वो recognize नहीं करता है उस चीज को. Correct. Now the number is 10 and 20, and what we will see after interchanging, the first value is 20 and second value is 10. Again we can check over here the value of x. यहाँ पे आप अगर printf लेते हो, then we will check it. Value of x, simply I will type over x, small x, colon %d, then comma x. Correct. यहाँ पे x, then control C. Here we can check the value of y, this is also y, and then after here we check the value of x, that remains as it is. So we will check it how step by step that values will be changing. Okay, \n is required because पूरा output मिक्स हो चुका है, उसकी खिचड़ी हो चुकी है. ठीक है. So we don't want any kind of mixing of output, that's why we will put at every line \n. Correct. So your output should be looking some sorted output that we want. 10, 20 will be the values given, and then we will see that again. Okay, कोई problem नहीं. X equal to initially 30, y equal to 10 and x equal to 20, and immediately in a second and third line we will get the result. ठीक है, क्योंकि उसमें exchange हो चुका है. x की वैल्यू जो है वो 20 हो चुकी है जो इनिशियली आपने दी थी 10, और y की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है जो इनिशियली आपने दी थी 20. ठीक है. आप मैंने \n लिया तो था, यहाँ पे नहीं लिया \n. ओके, लेट्स सी.
Okay, now it is perfect. X, Y, X. You just have to remember that particular pattern. First we have to do the addition in a first variable, second we have to do the subtraction in a second variable, उसमें store करना है, and in the third phase we have to do the subtraction and that we will store in the first variable, right? Is it understood in this program? Yes, Program. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now some examples are there as an homework to you. Is it attendance and notes Notes are available? are available. सर अटेंडेंस अवेलेबल है मगर नोट्स नहीं आई. Let me check. Yes. Okay, that time schedule was somewhat wrong. Tomorrow 26 was there. I should have to keep 25. And how much time is there? 1/4. Okay, schedule. Now it will be visible in a single couple of minutes. In a minute, correct? So okay, we have a session. So we'll stop here.